Hello dear students. As you all know that there is a fixed chemical formula for each and every substance in chemistry. And sometimes it is very important to determine the chemical formula by just looking at the composition, or you can say by analyzing the various elements present in that. So we'll discuss in this topic how we can determine chemical formula of any compound. Basically, chemical formula is of two types, empirical and molecular formula. Let us discuss this in detail. Chemical formula of any compound can be determined by knowing the percentage composition of a compound. So what is that percentage composition? It is the percentage of each element by mass present in one molecule of a compound. Means एक compound के एक molecule में कितने elements present हैं, उन elements का mass percentage क्या है, that is called percentage composition, and this can be calculated by just dividing the mass, atomic mass of that element, और वो कितने उसके atoms present accordingly, total mass of those elements present in that compound, one molecule of that compound, divided by the molar mass of the compound multiplied by 100. So this is the formula which we can use to determine percentage composition of any substance. So we can see one example. For example, you need to find percentage composition of water. So first of all, you need to find molar mass of water. That is the molecular mass, you can say, in gram. So it is 2 plus 16 as 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So total 18 gram. Now mass percentage of hydrogen is mass of hydrogen present in that compound divided by total mass of the compound, that is the molecular mass 18. So 2 by 18 multiplied by 100 will give you 11.11%. Next, mass percent of oxygen. If the compound consists of just 2 atoms, so you can simply subtract the mass percentage of hydrogen from 100 and you will get the answer for oxygen. Otherwise, simply you can find 16 gram is the mass of oxygen present in 18 gram of water. Hence, the percentage is 16 by 18 multiplied by 100, that is 88.89%. Next, empirical and molecular formula. So what is an empirical formula? It is actually the simplest formula of any compound. That means it gives the simplest whole number ratio of all the elements present in one molecule of a compound. Let us see one example of glucose. Glucose, you know the formula is C6H12O6, but that formula is telling the exact number of the elements, like 6 carbon, 12 hydrogen and 6 oxygen. But if we simplify this ratio 6, 12, 6, we have this C1H2O1, that is 1 by 2 by 1 का जो simplest ratio आया glucose में in elements का, that is the empirical formula. That means empirical formula of glucose is CH2O. Empirical formula is the simplest one and it can be same for two different compounds. कुछ compounds, 2-3 compounds का भी same formula, empirical formula हो सकता है. तो it doesn't provide any structural information कि आप empirical formula को देखकर आप guess नहीं कर सकते कि उस compound की exact structure क्या होगी. It just tells the simplest whole number ratio of elements present in a compound. And secondly, we come to molecular formula. This is the actually exact formula, chemical formula of any compound, because it gives the actual number of atoms of all the elements present in one molecule of a compound. For example, C6H12O6 is the molecular formula of glucose and it provides structural information of compound. And as you all know that molecular formula is actually the main formula, so it gives every information regarding that compound. And moreover, empirical formula is a whole number multiple of molecular formula, but for some compounds it may be same. For example, water H2O, अब 2 by 1 का जो water में ratio है hydrogen और oxygen का, it is already a simple ratio. तो empirical formula
and molecular formula for water is same, that is H2O. Now we'll see how chemical formula can be determined if we know the percentage composition of an element. So this is actually first step to know the percentage composition that is generally given for the problems to be solved. And first step you need to do is you have to assume that the percent given is equal to the number of grams in a 100 gram sample. मतलब आपने उस क्वेश्चन के अंदर पूरे अमाउंट सब्सटेंस का 100 ग्राम अज्यूम करके जो परसेंटेज है गिवन उसी को डायरेक्टली मास में रिप्रेजेंट कर देना है. मीन्स आपने परसेंटेज साइन की जगह ग्राम यूनिट लगा के उसको डायरेक्टली मास में कन्वर्ट कर लेना है. अब इस ग्राम मास जो आपने लिया परसेंटेज से उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है. तो गिवन मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू डिवाइड इट विद दैट atomic mass, gram atomic mass और molar mass of that particular element. Then you need to divide. अब आपको जितने भी एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है सबके मोल्स आ जाएंगे और उन मोल्स में से जिसका लोएस्ट नंबर आया, स्मॉलेस्ट मोल जो आया, उससे सारे मोल वैल्यूज को डिवाइड करके आपको एक रेशियो फ्रेम करना है. और वो रेशियो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, तब आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रेम हो जाएगा. तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म होल नंबर में करने के लिए समटाइम्स आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है रेशियो को. दैट विल डिस्कस इन एग्जांपल्स. तो फर्स्ट एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78 एंड इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज 92.4% कार्बन, 7.6% हाइड्रोजन. Determine the empirical and molecular formula of the compound. This is the problem given to you. Now first step is, as we are discussing, how to find empirical formula from percentage composition. So percentage composition आपको 2 elements given in this compound, carbon and hydrogen. Carbon percentage 92.4. As I told you, you need to assume that the compound has 100 gram. तो उसके अकॉर्डिंग ये जितना परसेंटेज है वो डायरेक्टली आपने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया. ये टेबल देख रहे हैं आप, इस तरह की टेबल आपने बनानी है जब भी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स के नेम, उसके बाद परसेंट, मास परसेंट को डायरेक्टली ग्राम में लिख लीजिए. 92.4 ग्राम कार्बन एंड 7.6 ग्राम हाइड्रोजन. एंड ऑलवेज चेक दिस, इट मस्ट बी the sum of these masses must be equal to 100. Next is atomic mass of carbon 12, hydrogen 1. अब उसके बाद हमें मोल्स कैलकुलेट करने. कार्बन के मोल्स निकालेंगे. अब मास गिवन 92.4 डिवाइड करिए 12 से जो उसका मोलर मास है कार्बन का, एंड देन यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स 7.7 मोल. और सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन 7.6 डिवाइड किया हमने 1 से, 1 इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, देन विल गेट 7.6 बाय 1 इक्वल टू 7.6. अब इन दोनों में से जो लोएस्ट मोल्स आए हैं, एक 7.7 है, दूसरा 7.6 है, लोएस्ट मोल इज 7.6. तो डिवाइड करना है हमने दोनों मोल्स को इस लोएस्ट नंबर से टू गेट अ रेशियो. एक रेशियो निकालने के लिए हमें डिवाइड करना है. तो 7.7 डिवाइडेड बाय 7.6 1.01 और दूसरा 7.6 बाय 7.6 इज 1. नाउ approximately equally है 1.01 भी 1 के, तो you get this simple ratio 1:1. ये रेशियो होल नंबर में आना चाहिए. सपोज ये डेसिमल आता है और वो डेसिमल अगर आप 1 जैसे 0.9 है या 1.9 है तो आप उसको इजीली राउंड ऑफ कर सकते हो, या फिर 1.1 है तो उसको हम राउंड अप कर सकते हैं लोअर नंबर 1 में, 1.9 है तो हायर नंबर 2 में. बट अगर इन बिटवीन है, जैसे 1.5 आ जाता है, 2.5 आ जाता है, इस तरह के रेशियोज आते हैं अगर, तो आपको उनको किसी एक सूटेबल मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट करना है. तो एज द सिंपलेस्ट रेशियो हेयर इज 1/1. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया C1H1. बस 1 we doesn't write while writing formula, तो formula is CH. Now the next step is to determine molecular formula, that is the actual formula of any chemical compound. So for this, as you have done up to empirical formula, तो empirical formula से ही हम derive करते हैं molecular formula by multiplying it with some whole number multiple, and this factor is represented by n. वो n 1 भी हो सकता है, मतलब empirical formula जो है वही compound का molecular formula भी हो सकता है, और it may be some other
होल नंबर मल्टीपल। तो वो n फैक्टर लाना कहाँ से, आपने उसके लिए आपको क्या करना है, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको आया है लास्ट स्टेप में, स्टेप 1 में, उसका एम्पिरिकल मास निकाल लीजिए। और एम्पिरिकल मास निकालने के बाद उसको मॉलिक्यूलर मास जो कंपाउंड का या तो क्वेश्चन में गिवन होता है उस, या फिर क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास अगर नहीं गिवन है तो उसकी वेपर डेंसिटी गिवन होती है। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करके आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट दिस फैक्टर n। तो फर्स्ट फॉर्मूला यू नीड, इफ in question molecular mass is not given but vapor density is given, then multiply vapor density by 2 to obtain molecular mass. Next n फैक्टर जो आपने निकालना है वो मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है एम्पिरिकल मास से। एंड थर्ड फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपको डिराइव करना है वो n फैक्टर जो आपको मिलेगा बाय डिवाइडिंग द मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम एम्पिरिकल मास, दैट n फैक्टर इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ empirical formula to derive molecular formula. Let us see through this with this example. Next, जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला था, यू रिमेंबर दैट CH। अब उसी से आगे हम स्टेप 2 करते हैं, हाउ टू डिराइव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इन द प्रॉब्लम द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस वाज गिवन एज 78U। Now 7 mass is given, what you need to do, n फैक्टर निकालना है, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है एम्पिरिकल मास से। अब मॉलिक्यूलर मास आपके पास है 78, एम्पिरिकल मास निकालेंगे आप C और H जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था टेबल से। CH का जो मास होगा 12 + 1 13। नाउ डिवाइड दिस 78 by 13, यू विल गेट 6। तो ये 6 आपके पास एक फैक्टर आ गया जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाय दैट एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अब फॉर्मूला आप किस फॉर्म में लिखते हैं, यू नो दैट नंबर ऑफ एटम्स आए हैं, ये आपके पास रेशियो आया, तो दैट is to be written like this, C6H6. So now the molecular formula of the compound is C6H6. So this is quite simple way to derive empirical and molecular formula if you know the percentage composition of any compound. Let us discuss one more example. Butyric acid contains only carbon, hydrogen and oxygen. A 4.24 milligram sample of butyric acid is completely burnt. It gives 8.45 milligram of carbon dioxide and 3.46 milligram of water. What is the mass percentage of each element in butyric acid? तो पहला काम आपको क्वेश्चन में करना है, यहाँ डायरेक्ट मास परसेंटेज गिवन नहीं है, आपको दिया है कि जो कंपाउंड है उसको जब कंप्लीटली एयर में बर्न किया तो ये 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मासेस जो गिवन है क्वेश्चन में, उनसे कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। और दूसरा काम आपको फिर बी पार्ट जो है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्यूटारिक एसिड इज 88U, find the molecular formula. तो all the things we need to find in this question, मास परसेंटेज निकालनी है, देन उस परसेंटेज को यूज करके एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है एंड देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस. Now first thing is calculation of mass percentage of different elements. As you know that there are 3 elements present in that compound, C, H and O. और C को अब आप निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से. अब उस कंपाउंड जो आपके पास था 4.24 ग्राम कंपाउंड था, मिलीग्राम 4.24 मिलीग्राम, उसको आपने बर्न किया. बर्न करने पे आपको वो दे रहा है 8.45 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितना कार्बन होता है? 1 molecule of CO2 means 1 atom of carbon. तो 1 mole of CO2 will also have 1 mole of कार्बन एटम. फॉर एग्जाम्पल 44 ग्राम कार्बन अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो 12 ग्राम उसमें कार्बन होता है. इट्स वेरी सिंपल. आपको मोल कंसेप्ट यहाँ लगानी है. 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट होता है 1 मोल कार्बन एटम्स के. तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल हैव 12 ग्राम कार्बन इन इट. बट अब क्वेश्चन में मिलीग्राम्स दिए हैं तो यहाँ ज़रूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, बिकॉज अल्टीमेटली वी नीड टू फाइंड परसेंटेज. तो परसेंटेज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मिलीग्राम से भी निकाल सकते हैं. तो 44 मिलीग्राम
carbon dioxide will give you 12 milligram carbon. अब 44 ग्राम में 12 है तो 8.45 के लिए सिंपली यूनिटरी मेथड लगा लीजिए. यू विल गेट दिस 12 by 44 मल्टीप्लाइड बाय 8.45 मिलीग्राम कार्बन प्रेजेंट इन 8.45 मिलीग्राम ऑफ CO2 जो सैंपल ने प्रोड्यूस किए. अब इससे परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ कार्बन जितना उस कंपाउंड में आया आपके पास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, द सेम फॉर्मूला. अब वेट ऑफ कंपाउंड जो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है वो 4.24 है, तो इस सारे अमाउंट को 4.24 से वेट ऑफ कार्बन जो आपने निकाला 12 by 44 मल्टीप्लाइड बाय 8.45, इसको डिवाइड करना है 4.24 से और मल्टीप्लाई करना है 100 से. यू विल गेट 54.3%. So this is the percentage of carbon in this compound. Similarly, you need to calculate percentage of hydrogen from water. अब उस क्वेश्चन में वाटर भी गिवन था आपको कि इतने ग्राम वाटर वो प्रोड्यूस कर रहा है. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड बाय दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 3.46 मिलीग्राम. तो 3.46 मिलीग्राम में से हाइड्रोजन कैसे निकालना है वो देखिए. वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2. तो 18 ग्राम वाटर विल इक्विवेलेंट टू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. ऑब्वियसली क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है तो मास 2 ग्राम होगा. अब यहाँ मिलीग्राम में तो अकॉर्डिंगली यू कैन कन्वर्ट दैट गिवन मास इनटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको अगेन उससे फिर 4.24 से डिवाइड करना है एंड यू विल गेट 9% हाइड्रोजन एयर. अब आपको दो चीज़ों की परसेंटेज आ गई, कार्बन एंड हाइड्रोजन. ऑक्सीजन यहाँ पर एक्चुअली डायरेक्ट नहीं हम निकाल रहे, बट यू नो दैट ओवरऑल अगर हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल कंपाउंड कितना होगा? 100 ग्राम ऑब्वियसली, या 100 मिलीग्राम फॉर दिस क्वेश्चन. तो 100% के लिए आपको अब क्या करना है? इन दोनों कार्बन एंड हाइड्रोजन की जो परसेंटेज आई है उनको ऐड कर दो. 54.3 प्लस 9 विल गिव यू 63.3%. अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी आ गई? 100 माइनस 63.3 दैट इज 36.7%. तो इन दिस वे अब आपको एक बार चेक करना है ज़रूर इन तीनों परसेंटेज को ऐड करके कि आपने जो भी परसेंटेज फाइंड आउट की हैं वो सब 100 आना चाहिए टोटल. तो दिस टाइप ऑफ calculations will be done in case percentage composition is not given but the masses of the substance is given in some other way. The next step is we need to do that how to the formula. तो दिस स्टेप 2 ऑफ दिस क्वेश्चन सेम वही हमने टेबल फ्रेम करनी है. परसेंटेजेस आपके पास आ गई. एज सच परसेंटेज को ग्राम में लिख लिया हमने कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के लिए. फर्स्ट स्टेप यही है आपका, परसेंटेज वाला कॉलम आप नोट कर लीजिए. सेकेंड स्टेप में एटॉमिक मासेस, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16. यू कैन सिंपली टेक 1, यहाँ 1.008 लिखा है, एग्जैक्ट की जगह आप सिंपल 1 लेके सॉल्व कर सकते हैं. देन मोल्स ऑफ एटम्स, you can find out mole by dividing mass with atomic mass. तो you can get these number of moles. अब इन तीनों moles में से smallest जो number है that is 2.29. इस नंबर से तीनों मोल्स को डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में टू फाइंड मोल रेशो. अब मोल रेशो जो आपके पास आ रही है ये इस तरह के नंबर्स हैं कि आप इनको इजीली राउंड ऑफ कर सकते हैं. 1.97 कैन बी राउंडेड अप टू 2. 3.9 को राउंड अप किया आपने, 4 आ गया. 1 is 1. नाउ यू गेट हियर द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो 241. इस रेशो को अब आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. तो यही उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रेम करेगा. अब वो बनाना कैसे? आपने कार्बन के साथ 2 लगा दीजिए, हाइड्रोजन के साथ 4 लगा दीजिए, ऑक्सीजन के साथ 1. तो फॉर्मूला इज C2H4O. तो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. अब नेक्स्ट स्टेप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए. मॉलिक्यूलर मास इज 88 U गिवन इन द क्वेश्चन. और एम्पेरिकल मास हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकाल लेना है. कार्बन 2 फॉर 24 ग्राम, हाइड्रोजन 4 ग्राम, ऑक्सीजन 16. सबको ऐड करोगे 44 ग्राम इज द एम्पेरिकल मास फॉर दिस कंपाउंड. नाउ फाइंड एन फैक्टर. डिवाइडिंग 88 by 44 यू गेट आंसर 2. अब इस पूरे एम्पेरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट आंसर C4H8O2. तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटायरिक एसिड. होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. फॉर practice such kind of questions, I have given one assignment and I think that you can
easily solve it now. Thank you.